ओके डन। बहुत बढिया प्रतीक, बहुत बढिया. कालचा डीपीपी कसा होता? छान होता. कालचा डीपीपी छान होता का? ओके. So we are dealing with topic breathing and exchange of gases, and in last lecture we discussed about the transport of oxygen, and that oxygen is transported with the help of, or it is transported by RBC. 97% of oxygen is transported by RBC, okay, in the form of oxyhemoglobin, and only 3% of oxygen is transported in a dissolved form through the plasma. And you all know that one molecule of hemoglobin can carry maximum 4 number of oxygen. One molecule of hemoglobin carry maximum 4 number of oxygen. So, and deliver it to the tissue. At lungs level or at alveoli level, what happens? There is an increased partial pressure of oxygen. There is an increased PO2. Why? Because oxygen is taken in and that reaches the alveoli. So at alveolar capillary level, there is an increased level of partial pressure of oxygen, increased PO2 at alveoli level. You all know that. You all know that. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. At alveoli, क्या हो रहा है दोस्तों? At alveoli, there is increased or a high PO2 म्हणता येईल त्याला. Increased PO2 and there is a decreased PCO2, H plus ion concentration and temperature. This is a condition at alveoli. Why there is increased PO2? Because we inhale the oxygen. And that reaches the alveoli. So there is always increased partial pressure of alveoli or high partial pressure of oxygen in alveoli. And we exhale carbon dioxide. So always there is a low PCO2, and because of that there is a low H plus ion concentration, and also there is a low temperature in alveoli. At a tissue level, what happens? At a tissue level, you all know that at tissue level where oxygen is utilized, you all know that the PO2 means partial pressure of oxygen. PO2 means partial pressure of oxygen is decreased, or there is a decreased PO2, and at a tissue level, glucose is broken down into those CO2, water, and energy, or this, and that oxygen is utilized for aerobic respiration, cellular respiration, and dosto, you all know that oxygen is utilized and carbon dioxide is formed, energy is formed, heat is released, and that formed carbon dioxide, when it enter into the blood, it combine with the water and form carbonic acid. That carbonic acid is a very unstable compound. It undergo breakdown to form bicarbonate ion and H plus ion. Bicarbonate ion and H plus ion. So there is दोस्तों, because of that कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है टिश्यू लेवल पे, सो देयर इज इंक्रीज PCO2, और PCO2 बढ़ता है तो देयर इज इंक्रीज H plus ion concentration and there is an increased temperature. So these are the two situations in our body at a two different level of respiratory track. नहीं तो कैसे respiratory track तो नहीं कहेंगे, but there are two situations or there are two conditions in our body at a two different level, at alveolar level and at a tissue level. Now all these conditions at alveolar level दोस्तों, they favor the association of hemoglobin with oxygen, MCQ. और these conditions दोस्तों, ये जो condition है, they favors all above factors favors. क्या favors कर रहे हैं? favors दोस्तों, they favors
formation of the favors association of, किसका association? Association of oxygen with hemoglobin. Okay, association of oxygen with hemoglobin, or to form दोस्तों, to form oxyhemoglobin, So always remember, at alveoli or lungs level, these conditions favor the formation of oxyhemoglobin. Now this oxyhemoglobin transported via blood. Okay, this is transported via blood and reaches the tissue. तो यहाँ पे थोड़ा सा जुदाई वाला माहौल है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं. सो ये जो कंडीशंस है, these conditions दोस्तों, these condition or these factor favors the dissociation of oxygen from hemoglobin. ये all the above factors favors, क्या फेवर्स करते हैं? फेवर दोस्तों डिसोसिएशन मींस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा हीमोग्लोबिन से. डिसोसिएशन फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हिमोग्लोबिन. डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हिमोग्लोबिन. मग इथं काय व्हायला लागलंय? दैट एंड यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यू. ऑक्सीजन इज at tissue level, oxygen is delivered to the tissue. यहाँ पे ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यू. और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? alveolar oxygen is combined with hemoglobin. ये बेसिक लेवल है. We are dealing with दोस्तों concept of transport of oxygen. We are dealing with concept of दोस्तों that is a transport of oxygen, and you all know that दोस्तों transport of oxygen, and you all know that 97% of oxygen is transported by hemoglobin. Only 3% oxygen is transported in dissolved form. Now please pay attention. यहाँ पे जो डिसोसिएशन होता है, इसके लिए एक कर्व है जिसका नाम है दोस्तों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है which carries the oxygen, मैक्सिमम कितने नंबर कैरी करेगा? 4. मैक्सिमम कभी 3 भी कर सकता है, कभी 2 भी कर सकता है, कभी 1 भी, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सिजन. कधी कधी ऍटो असतो बघा, कधी 3 प्रवासी बसतात, कधी 2च प्रवासी, कधी 1च प्रवासी, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पॅसेंजर त्या ऍटो मध्ये. तसंच मी काल बोललो की एक कॉन्सेप्ट बोललो, पर्सेंटेज सॅच्युरेशन ऑफ. व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सेंटेज सॅच्युरेशन ऑफ? पर्सेंटेज कोणाचं? पर्सेंटेज कशाचं? सॅच्युरेशनचं. पर्सेंटेज सॅच्युरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन. नाउ अभी ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन. व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट क्या है बताता हूं. परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, इसे क्या कहते हैं? मैं कल भी बोला था कि अगर लक्षात ठेवा, एक ऍटो आहे, त्याच्यामध्ये 4 प्रवासी बसतात ड्रायव्हरला पकडून. 4 ड्रायव्हर ऑलरेडी त्या ऍटो मध्ये बसलेला आहे. तो ऍटो काय झाला माहितीये का? 25% ऑलरेडी सॅच्युरेट झालेला आहे. पुन्हा दुसरा एक प्रवासी आला बसला, आता तो ऍटो 50% सॅच्युरेट झालाय. तिसरा प्रवासी आला त्या ऍटो मध्ये बसला, तो 75% सॅच्युरेट झालाय. आणि चौथा प्रवासी आला आणि त्या ऍटो मध्ये बसला, आता तो 100% ऍटो सॅच्युरेट झालाय. आता त्याच्यामध्ये जागा नाही. हे मग असलं नसलं करून बसले, त्यानंतर तर जागा बनत. पण नॉर्मल सांगतो, नॉर्मल ह्याला माहिती सॅच्युरेशन. आपण बोलतो एखाद्या फील्ड मध्ये सॅच्युरेशन आले, कम्प्युटर सायन्स मध्ये सॅच्युरेशन आले असं म्हणलं जातं, किंवा मेकॅनिकल मध्ये सॅच्युरेशन आले, इंजिनिअरिंगच्या भाषेत असं बोललं जातं. ठीक आहे. ENTC म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक अँड टेलिकम्युनिकेशन मध्ये सॅच्युरेशन आले. असं आहे का? सॅच्युरेशन आले म्हणजे तिथल्या जागा सगळ्या फुलफिल झाल्या. सॅच्युरेशन आले म्हणजे तिथल्या जागा सगळ्या फुलफिल झाल्यात. याला म्हणायचं सॅच्युरेशन. याला म्हणायचं सॅच्युरेशन. तर पर्सेंटेज सॅच्युरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन म्हणजे इट इज accumulation of site on the hemoglobin by oxygen. पहले तो what is the concept of saturation of hemoglobin? Saturation means, saturation का मतलब होता है दोस्तों, saturation means it is
accumulation means किंवा it is accumulation किंवा a state of oxygen is attached to the it is state of attachment of it is state of attachment of oxygen with the hemoglobin त्याला म्हणायचं सैचुरेशन a state of attachment of oxygen with hemoglobin त्याला म्हणायचं सैचुरेशन और फिर मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन कितने हैं एक हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं एक हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड 4 हीम और एक हीम के पास एक आयरन तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन मॉलिक्यूल होते हैं और इस दोस्तों इस आयरन मॉलिक्यूल को अटैच होता है दैट इज अ ऑक्सीजन इस आयरन मॉलिक्यूल को अटैच होता है ऑक्सीजन अगर एक ऑक्सीजन अटैच हो गया तो 25% सॅच्युरेशन दो अटॅच हो गए तो हे मी काल डायग्राम काढली होती तुम्हाला आठवत असलं तर बघा पटापट आणि पुढे जातो मग हा समजा हिमोग्लोबिन आहे इमॅजिन करा असं हा हिमोग्लोबिन आहे इमॅजिन करा हा काय आहे हिमोग्लोबिन आहे आणि ह्या हिमोग्लोबिन मध्ये ओके ये है हिमोग्लोबिन और इसके पास दीज आर दोस्तों बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन ह्या कुठल्या साइट आहेत दीज आर द बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन इथं ऑक्सीजन बाइंड होणार आहे आणि किती आहेत त्या 4 कितने हैं 4 साइट है कितने साइट है दोस्तों 4 यहाँ पे दीज आर द बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन नाउ ये है हीमोग्लोबिन व्हाट इज दिस ये कौन सा मॉलिक्यूल है दिस इज एन दोस्तों दिस इज एन एचबी हीमोग्लोबिन है नाउ आता बघा सैचुरेशन म्हणजे काय मी सांगितलंय अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच हो गया तो कितना सैचुरेशन हो गया व्हाट इज द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया दोस्तों एक ही अटैच है अभी भी 1/4 ही अटैच है 1/3 3/4 अभी भी बाकी है तो ये हो गया दोस्तों 25% यस 25% आता दुसरा ऑक्सिजन येऊन अटॅच झाला दुसरा प्रवासी येऊन बसलेला आहे तर हे झालं 50% सॅच्युरेशन कितना हो गया 50% सॅच्युरेशन तिसरा आलाय किती झालं तिसरा ऑक्सिजन येऊन अटॅच झालाय किती होईल सांगा तिसरा ऑक्सिजन येऊन अटॅच झालाय ते होईल 75% सॅच्युरेशन चौथा ऑक्सिजन येऊन अटॅच झालाय आता होईल 100% सॅच्युरेशन दिस इज एन कॉन्सेप्ट दिस इज एन कॉन्सेप्ट दिस इज एन बेसिक कॉन्सेप्ट समझते ओके अटैचमेंट ऑफ वन ऑक्सीजन लीड टू द 25% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन अटैचमेंट ऑफ और यहाँ पे क्या दोस्तों दैट इज अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन attachment of 2 molecule of oxygen lead to 50% saturation attachment of 3 molecule lead to the 75% saturation and attachment of 4 molecule lead to the 100% of saturation ये क्लियर है काय लोकांना कळलं नव्हतं काल कळतंय का सांगा जरा हे क्लियर आहे का रे कॉन्सेप्ट थोडं हा कॉन्सेप्ट क्लियर आहे का काय जे बोललो ते परसेंटेज सॅच्युरेशन वाला इज दैट क्लियर का लिहून देऊ ये क्लियर है इज दैट क्लियर हाँ क्रिस्टल क्लियर है हे माहितच असायला पाहिजे लक्षात ठेवा हे माहितच पाहिजे दैट इज अटैचमेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओके attached number of oxygen molecule attached with hemoglobin okay versus इकडे जर बघितलं that is number of oxygen molecule attached with the hemoglobin and percentage saturation of hemoglobin with oxygen हे किती असणार जरा लक्ष द्या now number of इथे जर बघितलं तर 1 तर परसेंटेज सॅच्युरेशन किती येईल 25% नंबर ऑफ ऑक्सिजन मॉलिक्यूल अटॅच विथ हिमोग्लोबिन 2 परसेंटेज सॅच्युरेशन 50% नंबर ऑफ ऑक्सिजन मॉलिक्यूल अटॅच विथ हिमोग्लोबिन 3 परसेंटेज सॅच्युरेशन
75%. आता जागाच नाही, कुठं लिहू? नंबर ऑफ हिमोग्लोबिन मॉलिक्युलर अटॅच इज 4, परसेंटेज सॅच्युरेशन विल बी 100%. हे असा कॉन्सेप्ट आहे. परसेंटेज सॅच्युरेशन विल बी 100%. हा एक चार्ट बनवा छोटासा. ओके, एक छोटासा चार्ट बनवून घ्यायला छानपैकी, हे माहित असू द्या. ओके, क्लियर आहे? पुढे बोलूया. ठीक है, पुढे बोलूया. नाउ आगे बढ़ते दोस्तों बात करेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज मीन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. नाउ ये क्या कॉन्सेप्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? इट इज इंडिकेटेड बाय दोस्तों, डिनोटेड बाय PO2. स्मॉल p होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ओके, PO2. It is measured in millimeter of mercury. It is measured in millimeter of mercury. ये भी क्वेश्चन आएगा. It is measured in millimeter of mercury. याद रखो, partial pressure of oxygen. Now it is दोस्तों a pressure of oxygen in the mixture of gases. What is meant by partial pressure? A pressure contributed by individual gas in mixture of gases, that is called as a partial pressure. Pressure contributed by individual gas in mixture of gases, that is called partial pressure. Now please pay attention. मान लो एक मूवी है, कोई भी एक मूवी पकड़ लो, कोई भी आज का फेमस, पिछले 1-2 साल में फेमस मूवी कौन सा है, कोई भी पकड़ लो. मान लो प्रभास, सॉरी बाहुबली, सबने देखा होगा बाहुबली. तो बाहुबली में सभी जो एक्टर और एक्ट्रेसेस है उन्होंने एक्टिंग की है, चाहे वो प्रभास हो या फिर बाकी के भी जो लोग हो. ओके, तो सबसे बढ़िया एक्टिंग की है प्रभास ने. तो उसका एक अलग ही ऑरा था जब वो स्क्रीन के ऊपर आता था, अलग ही ऑरा था. पर तो उसका सभी के एक एक्टिंग है, पर उसका एक अलग ऑरा था. पर वहां पे और भी एक कैरेक्टर था बाहुबली में, उसने भी ज्यादा मराठी छाप सोडली म्हणतात ना, उसने भी ऐसी एक्टिंग की कि बहुत सारे लोगों के खुश कर दिया उसने भी. और उस आदमी का नाम था कटप्पा. सबको पता है, भल्लाल देव तो नाही, कटप्पा सगळ्याला माहिती ना कटप्पा. ओके, म्हणजे एवढा वफादार भी एखादा माणूस असू शकतो. ठीक आहे, एवढा वफादार भी माणूस असू शकतो कटप्पा, बरोबर आहे ना, कटप्पा. किंवा ते आणखी एक ते तिकडे देवसेनाचा तो तिकडच्या ह्याच्यामधलं एक कोणीतरी जे असेल, व्हॉट एव्हर इट मे बी. म्हणजे काय, प्रत्येकाचे कॉन्ट्रीब्युशन आहे त्या मूवीमध्ये, प्रत्येकाचे कॉन्ट्रीब्युशन, प्रत्येकाच्या ऍक्टिंगमुळे तो मूवी तिथपर्यंत गेला. तसंच मिक्सचर ऑफ गॅसेस मध्ये हर एक गॅस हॅविंग इट्स ओन प्रेशर. ओके, व्हाट इज मीन बाय पार्शियल प्रेशर? पार्शियल मीन्स आधा, आधे से भी कम, या फिर 25% या फिर 30%, इसे कहेंगे पार्शियल, उसे कहेंगे पार्शियल. सो व्हाट इज मीन बाय पार्शियल प्रेशर? इट इज अ प्रेशर contributed by individual gas in mixture of gases. बहुत सारे गैसेस है, पर उस खुद का एक गैस का प्रेशर क्या है, उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर. आर यू गेटिंग मी? तो अब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, CO2 है, और भी 1-2 गैसेस होंगे, पर ये 2 मेन है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ओके, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय ऑक्सीजन इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसे कहते हैं दोस्तों पार्शियल प्रेशर. ये आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आके आपको समझ में आएगा कि ये पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है. ये मैंने डेफिनेशन लिख के दी है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर दोस्तों? इट इज अ प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय individual gas in mixture of gases, कधी लक्षात ठेवा, in mixture of gases. त्याला म्हणायचं पार्शियल प्रेशर, उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर. नाउ प्लीज पे अटेंशन, उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर. एंड it mainly depends on concentration of that gas. It mainly depends on concentration of that gas. जितना ज्यादा concentration उतना ज्यादा partial pressure. More is the
मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस, more is the concentration of gas, okay, higher will be the partial pressure of that gas, higher will be the higher will be the partial pressure of that gas, higher will be the partial pressure म्हणजेच partial pressure of that gas, partial pressure of that gas, याद रखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी ये बहुत ही बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल दैट इज concentration of, for example, concentration of oxygen is more in alveoli, concentration of oxygen is more in alveoli. Why? Because just we inhale the air which is oxygen rich, concentration of oxygen is more in alveoli, so the PO2 म्हणजे partial pressure of oxygen is also high, so the partial pressure of oxygen is also high in alveoli। और क्यों ज्यादा है? concentration of oxygen is more in alveoli as दोस्तों as we inhale oxygen rich air, which inhale oxygen rich air, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और concentration of oxygen is less in tissue as we utilize that oxygen for cellular respiration, and so the PO2 is also low in tissue। आगे बढ़ते हैं, बेसिक चीजें हैं हमें ना पता नहीं है। अनदर एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, that is concentration of oxygen is low or it is less, concentration of oxygen is less at a tissue level, in tissue, why? As okay, we use oxygen for, or we utilize oxygen for दोस्तों, oxygen for aerobic respiration, so the because of that, उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, so the that is PO2 is low at tissue level। पढ़ते आता PO2 is low at a tissue level। ये तो क्लियर है, ये क्लियर हो गया या नहीं, ये क्लियर हो गया या नहीं? यस और नो, यस और नो। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, बात करेंगे फिर ये नया कॉन्सेप्ट, अभी बेस है, मुझे एक ही कॉन्सेप्ट बोलना है, दैट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसके बारे में मुझे बोलना है। दैट इज दोस्तों एक कर्व है जिसका नाम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। नाउ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, या फिर जस्ट कहेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसका दूसरा नाम ये है, इसे कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसका दूसरा नाम है दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसका दूसरा नाम ये है, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसका दूसरा नाम ये है। नाउ ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है या फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, दिस इज एन सिग्मोइड शेप्ड और एस शेप्ड कर्व व्हिच इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी प्लॉट। दो क्वांटिटीज हमने देखे, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दो क्वांटिटीज हमने देखे, मैं बात करूंगा। मान लो ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है दोस्तों, ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा है। सपोज मान लो ये है वाय एक्सिस, कसं लक्षात ठेवायचं, हे वाय एक्सिस आहे, याचं वाय काढायचं तुम्हाला सांगतो। वाय काढ लो वाय, और उस वाय का जो टेल होता है उसको खींचो, ये बन गया वाई एक्सिस। ओके, हमेशा इस ऐसा जो वर्टिकल है ये वाई एक्सिस है, दिस इज एन एक्स एक्सिस, दिस इज एन एक्स एक्सिस। नाउ व्हाट इज मीन बाय दोस्तों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व? इट इज एन सिग्मोइड शेप्ड कर्व होता है, इट इज एन सिग्मोइड शेप्ड कर्व होता है कुछ इस तरीके का।
इट इज एन सिग्मॉइड शेप्ड कर्व है दोस्तों। यहाँ पे इट इज ऑब्टेन्ड a sigmoid shaped curve which is obtained by plotting percentage saturation of percentage saturation of hemoglobin with oxygen, percentage saturation of hemoglobin with oxygen against partial pressure of oxygen PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2, इसे कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और ये कैसा है दोस्तों? इट इज सिग्मॉइड शेप्ड है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। ये सिग्मॉइड या फिर इसे कहते हैं यस शेप्ड होता है। कल ही क्वेश्चन पूछा था, सिग्मॉइड और यस शेप्ड होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। प्लीज पे अटेंशन नाउ प्लीज। क्या है दोस्तों? बात कर रहे हैं दैट इज ऑक्सीजन hemoglobin Hb dissociation, कि how that oxygen is dissociated from the hemoglobin at a tissue level। ये टिश्यू लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, at a tissue level। ओके, नाउ ये क्या है दोस्तों? इट इज एन सिग्मॉइड शेप्ड, इट इज अ सिग्मॉइड। सिग्मॉइड का मतलब होता है यस शेप्ड। सिग्मॉइड कोलन आपको याद होगा, ओके, जो लास्ट कोलन है उसे सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं, दैट इज यस शेप्ड। नाउ इट इज अ सिग्मॉइड shaped curve, it is a sigmoid shaped curve, sigmoid shaped curve होता है, curve obtained when, दो क्वांटिटी के बारे में मैंने बात की अब तक, when percentage saturation of oxygen, percentage saturation of, याद रखो, percentage saturation of hemoglobin, percentage saturation of hemoglobin with oxygen on y-axis is plotted against, डिटेल में चाहिए, ये भी क्वेश्चन आएगा कि कौन से एक्सिस पे क्या है, is plotted against, किसके अगेंस्ट? is plotted against the, बोलो, partial pressure of oxygen, it is plotted against the partial pressure of oxygen, that is दोस्तों small p capital O2, partial pressure of oxygen on x-axis, इससे कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। एंड दिस कर्व us help to understand how that or which factor are responsible for दोस्तों, which factor are responsible for the dissociation of oxygen from hemoglobin, नीट लक्षात ठेवा, which factor are responsible for dissociation of oxygen from hemoglobin, लक्षात ठेवा, ठीक है। तुम्ही जर बघितलं, the curve will be like this, ये है, मान लो कौन सा एक्सिस, ये बना लिया है हमने y, क्या है y, लक्षात ठेवा, क्या है y, ओके, ये हो गया दोस्तों y। खींचो फिर इस y को, ऐसा खींच लिया तो ये होगा y एक्सिस। नाउ यहाँ पे है दोस्तों x एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है? ये होगा x एक्सिस, दिस इज एन x एक्सिस, आणि हा झालाय y एक्सिस, हा झालाय y एक्सिस, इथं लिहितो y एक्सिस, आणि तो झाला x एक्सिस, जरा लक्ष द्या। आता इथं काय, यहाँ पे क्या दोस्तों, दैट इज परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन विथ ऑक्सिजन, म्हणजे ऑक्सिजन ना ते किती सॅच्युरेट व्हायला लागलाय हिमोग्लोबिन, 25%, 30%, 40%, 20%, काय भी असं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन। और यहाँ पे दोस्तों दैट इज PO2, म्हणजे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ये किस में है? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, हमेशा याद रखो यूनिट क्या है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नाउ याचे आकडे काय, जरा लक्ष द्या। आता समजा इथं आहे 0, 20, 40, 60, 80 आणि 100, 100, इकडे काय सेम, फॉर एक्झाम्पल 20, 40, 60,
इकडे काय समजा 20, 40, 60, 80 आणि 100, 100 असं आहे. कर्व अगोदर समझून घ्या, मग पुढच्या बारकाई बघू आपण. अगोदर कर्व समझून घ्या. और ये कैसा कर्व है दोस्तों? ये है सिग्मॉइड शेप. ये क्या है? सिग्मॉइड शेप कर्व है. सिग्मॉइड शेप म्हणजे हा यस शेप्ड आहे. द कर्व इज लाइक दिस. हा यस शेप्ड कर्व आहे. यस शेप्ड कसा है? यस शेप्ड कर्व. यस शेप्ड लाइक दिस. ये थोड़ा सा ऐसा यस शेप्ड कर्व है. ओके, ये है यस शेप्ड. मान लो कुछ इस तरीके से. आता याचा अर्थ काय लक्षात घ्या जरा. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ काय समजून घ्या. आता काही गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत. मग पुढचं बोलूया. मग मी पुढचं बोलतो. अगोदर हा समजून घ्या कर. आता कन्सेप्ट असा आहे, कॉन्सेप्ट असा आहे की 20% जर सॅच्युरेशन असेल, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 है, 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मान लो ये है 20. कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है मान लो 20. तो अगर 20 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है तो व्हाट विल बी दोस्तों, मान लो कि कितना होगा परसेंटेज? परसेंटेज सैचुरेशन कुछ इस तरीके से है, मान लो 25 हो जाएगा. 25, आर यू गेटिंग मी? 25. नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ, मान लो यहाँ पे कुछ तो भी 30 नहीं, तो यहाँ पे 25 है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 25. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 25. तो परसेंटेज सैचुरेशन कितना हो जाएगा? परसेंटेज सैचुरेशन कुछ इस तरीके का होगा दोस्तों. मान लो ये तो 40 था, इसके थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा. इट विल बी दैट इज 50. इट विल बी दैट इज 50. नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ, सपोज मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ यहाँ पे 40 है ना, पार्शियल प्रेशर 40 है, तो परसेंटेज सैचुरेशन कितना हो जाएगा? परसेंटेज सैचुरेशन कितना हो जाएगा देख लेते हैं कितना है. ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहे हैं. नियर अबाउट ये 78, 76 इस ऐसा कुछ है. सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना हो गया? 60. पार्शियल प्रेशर हो गया 60, तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑलमोस्ट 90 की तरफ बढ़ रहा है. परसेंटेज सैचुरेशन ऑलमोस्ट 90 की तरफ बढ़ रहा है. ये ऐसा ये है दोस्तों. जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उतना ज्यादा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, उतना ज्यादा ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन के साथ अटॅच हो जाएगा. हे कळायला लागले? हे कळायला का? ठीक आहे, हे कळायला का तुम्हाला? हे कळायला का? सांगायला तुम्हाला 50% सॅच्युरेशन येते, पर्सेंटेज मध्ये येते 50% असं येते. ठीक आहे, समजायला तुम्हाला? कळायला का हे? हा, हे असं बेसिक आहे. आता याला पुढे जाऊन बोलूया. याला पुढे जाऊन बोलूया की व्हॉट इज मीन बाय शिफ्ट टू लेफ्ट अँड शिफ्ट टू राइट. हा बेसिक कॉन्सेप्ट आहे. पण हा बेसिक कॉन्सेप्ट आता पुढे जाऊन बोलूया. लक्षात ठेवा एक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मीन बाय P50. किसे बोलते हैं P50? किसे बोला जाएगा P50? मतलब क्या होता है? पुढे जाऊन बोलूया. जरा लक्ष द्या आता. बर, जरा लक्ष द्या.
ठीक है, नॉर्मल। एनसीईआरटी मध्ये पण नाही, तो डायग्राम आहे ना झाली. ओके, असं. ओके, जस्ट वेट. येत आलंय. ओके, आलंय. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मधलं पेज नंबर 274 आहे. किती आहे? 274. 274 आहे. Now please pay attention. This is oxygen hemoglobin dissociation curve. This is oxygen hemoglobin dissociation curve. This is an oxygen hemoglobin dissociation curve. Here is the percentage saturation of hemoglobin with oxygen. Here is the percentage saturation of hemoglobin with oxygen. Here is a partial, on y-axis there is a partial pressure of oxygen in millimeter of mercury. Now यहाँ पे ये ऐसा करो है दोस्तों, इट इज सिग्मॉइड शेप्ड. कैसा करो यहाँ? सिग्मॉइड शेप्ड है. ये है सिग्मॉइड म्हणजे यस शेप्ड आहे. कसा आहे? सिग्मॉइड शेप्ड म्हणजे यस शेप्ड करो. सिग्मॉइड शेप्ड करो, यस शेप्ड करो. आता इकडं पार्शियल प्रेशर दिलं. आता एक लक्षात ठेवा, इथं इथं अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे जे प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला पाहिजे. मला एक गोष्ट बोलायची, दॅट इज व्हॉट इज मीन P50. P50 काय कॉन्सेप्ट असतो लक्षात ठेवा. इथं झालंय 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. आता मी इथं कुठेतरी 50% पकडू. इथं कुठेतरी मी काय करतो? 50% पकडतो. हे झालं 50%. इथं 50% म्हणजे 50% सॅच्युरेशन. मग कुठल्या, लक्षात ठेवा, कुठल्या लेवलला ते 50% सॅच्युरेशन येतं? समजा आपण जर इथं पकडलं तर हे इथल्या लेवलला येऊ शकतं. बघा, हे आहे फॉर एक्झाम्पल 25 पकडा. किती प्रेशर आहे? 25 लेवलला येऊ शकतं. किती लेवलला येऊ शकतं? 25 लेवलला. सी दिस. थोडं इथे घेतो. पार्शियल प्रेशर जर 25 असेल, पार्शियल प्रेशर जर 25 असेल तर लक्षात ठेवा, पार्शियल प्रेशर 25 असेल तर 50% हिमोग्लोबिन सॅच्युरेट होतो. असा एक कॉन्सेप्ट आहे. जर का पार्शियल प्रेशर 25 असेल, if PO2 is 25 यहाँ पे दोस्तों, if PO2 is 25, then if PO2 is 25, तर तुम्ही जर नीट ऑब्झर्व केलं दिसायला तुम्हाला PO2 जर 25 असणार आहे, पार्शियल प्रेशर जर 25 असेल तर पर्सेंटेज सॅच्युरेशन 50% असतं. हे तुम्ही नीट बघून घ्या. इथून हे किती आहे? 50%. हे 2 पॉइंट लक्षात घ्या. 2 पॉइंट. 2 पॉइंट. दुसरं एक महत्वाचं, याला म्हणायचं P50. हे जे पार्शियल प्रेशर, दैट पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड एज P50. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों P50? व्हाट इज मीन बाय P50? किसे कहते हैं P50? ये याद रखो, ये क्वेश्चन आएगा. व्हाट इज मीन बाय P50? P50 is the partial pressure of oxygen at which hemoglobin is 50% saturated. It is दोस्तों, it is P50. हमेशा याद रखो, what is P50? It is partial pressure of oxygen
It is PO2 of oxygen or partial pressure of oxygen. Pressure of oxygen, partial pressure of oxygen at which दोस्तों, at which याद रखो, at which hemoglobin is 50% saturated, at which hemoglobin is 50% saturated, त्याला म्हणायचं P50. आणि ते किती असतं, and that is दोस्तों, that P50 कितना है बोलो, what is that P50, and that is दोस्तों P50 is equal to, उसकी वैल्यू क्या होगी, that is 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होती है, कितनी होती है, P50 is equal to 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. नाउ प्लीज पे अटेंशन, और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दोस्तों, और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज मी जर प्रश्न विचारला की 75% पार्शियल प्रेशर जर का 40 झालं, तुम्ही नीट ऑब्झर्व करा, पार्शियल प्रेशर जर का 40 झालं तर नियरली असं बोललं जातं, नियरली थोडस इकडे तिकडे होईल, पण नियरली लक्षात ठेवा, नियरली दॅट percentage saturation is 25%. percentage saturation कसं आहे, सॉरी 75% होतं, 75%. ओके, पार्शियल प्रेशर जर 40 झालं तर पर्सेंटेज सॅच्युरेशन किती होतं असं 75. हे परीक्षेत येणार नाही, पण तुम्हाला हे येऊ शकतं, व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ P50, व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ P50, हेच मला सांगायचं, व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ P50, मला हेच सांगायचं. क्लिअर आहे हे कॉन्सेप्ट, कला ह्या डायग्राम वरून एक लक्षात ठेवा, द कॉन्सेप्ट ऑफ P50. आणि लक्षात ठेवा, समजा तुम्हाला जर बघायचं असेल की 90% जरी झालं सॅच्युरेशन, म्हणजे पार्शियल प्रेशर जर का 90 जवळपास जरी गेलं पार्शियल प्रेशर, ओके, थोडस जर नीट ऑब्झर्व करताल तुम्ही, ओके, तर रिअरली तो 100 ला टच होत असतो सॅच्युरेशन, रिअरली 100च्या थोडं खालीच असतो. समजा इकडे 100 पर्यंत गेलं तर तुम्ही म्हणता येईल 100% झालं, किंवा 95 किंवा 96% झालं, 97% झालं, असा कॉन्सेप्ट आहे. येत आहे लक्षात, जसं जसं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन वाढत राहील तसं तसं असोसिएशन ऑफ हिमोग्लोबिन, असोसिएशन ऑफ ऑक्सिजन विथ हिमोग्लोबिन होत राहील, आणि म्हणून पर्सेंटेज सॅच्युरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन वाढत राहील. समझ में आ रहा है, यस और नो? सॉरी, as the PO2 increases, percentage saturation of hemoglobin with oxygen also increases. This is a basic concept, this is a basic. Now please pay attention, और important एक concept है दोस्तों, that is concept of shift to right or shift to left. फिर से वही हा कॉन्सेप्ट अतिशय महत्वाचा आहे. बघा जरा, तुम्ही मला सांगायचं नाउ दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये जो है, ओके, ये जो है दैट इज अ, ये जो साइट है दोस्तों, ये लेफ्ट साइट है. कौन सी साइट है, ये जो साइट है, दिस इज एन लेफ्ट साइट है, ये लेफ्ट साइट है, ये वाली पूरी, आई एम सो सॉरी, ये जो है दिस इज एन राइट साइड, RIGHT, ये राइट साइड है, और ये जो है दोस्तों मान लो, ये जो है दिस इज एन लेफ्ट साइड, ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है, इट इज लेफ्ट साइड, राइट साइड, और ये ऊपर वाली लेफ्ट साइड, ये नीचे वाली राइट साइड है. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट टू राइट, दैट कर्व इज शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट. आता मी तुम्हाला सांगतो काय कॉन्सेप्ट आहे. मी हे कॉन्सेप्ट सांगितलं तुम्हाला की कॉन्सेप्ट असं सांगितलं, पार्शियल प्रेशर ऑफ, चालतं, मी असं बोललो की पार्शियल प्रेशर जेवढं जास्त तेवढं सैचुरेशन जास्त होत असतं. समझा हा कर्व, अगर ये जो कर्व है, पहले तो ऐसा था दोस्तों, पहले ये कर्व ऐसा है, ओके, मान लो ये यहां पे है, ये ना, ये थोड़ा सा शिफ्ट टू राइट होता है,
शिफ्ट टू राइट, और पहले यह क्या, अगर 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 पार्शियल प्रेशर 20 था, पहले पार्शियल प्रेशर 20 था, तो परसेंटेज सैचुरेशन समथिंग लाइक 30, पार्शियल प्रेशर 40, तो परसेंटेज सैचुरेशन लाइक 75, पार्शियल प्रेशर 60, परसेंटेज सैचुरेशन इज लाइक समथिंग 90। ये कुछ इस तरीके का है। अभी अगर ये कर्व शिफ्ट टू राइट हो गया है, ये कर्व मान लो शिफ्ट टू राइट हो गया लाइक दिस, ओके, ये जो कर्व है ये दोस्तों शिफ्ट टू राइट हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। अगर ये शिफ्ट टू राइट हुआ है, ये कर्व शिफ्ट टू राइट, थोड़ा सा राइट साइड को शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या है शिफ्ट टू राइट का? इससे कहते हैं दोस्तों द कंसेप्ट ऑफ, ये कर्व क्या हुआ है, शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू राइट, राइट साइडला शिफ्ट झाला कर्व। म्हणजेच मला एक सांगायचंय, नीट लक्ष द्या आता। पहले पहले ये जो कर्व था दोस्तों, ये जो कर्व था, यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 है तो सैचुरेशन होता था कितना, 30, और अगर यहाँ पे अगर देखा जाए पार्शियल प्रेशर 20 है तो सैचुरेशन कितना होगा, कुछ 15, सैचुरेशन कितना होगा 15। मींस क्या हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन हो रहा है। ओके, शिफ्ट टू राइट का मतलब होता है, शिफ्ट टू राइट का मतलब हो रहा है क्या है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। परत सांगतो, हा की पॉइंट है, हा कॅची पॉइंट है। परत सांगतो, ये नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल कर्व है। अगर नॉर्मल कर्व की बात करते हैं, नॉर्मल कर्व, अगर इसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40%, 40 है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो परसेंटेज सैचुरेशन कितना कितना था, नियर अबाउट 70 to 75, 75 मान लो, या फिर 70 मान लो, 70। ओके, ये नॉर्मल का, ये नॉर्मल का। अभी इस कर्व का देखते हैं, ये जो शिफ्ट टू राइट हुआ है, पार्शियल प्रेशर अगर 40 है ऑक्सीजन का, तो दोस्तों यहां पे पार्शियल प्रेशर सपोज 40 है, तो यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन भी 40 या फिर थोड़ा सा ज्यादा 43, 45%, 45 पकड़ लेते हैं। इसका मतलब परसेंटेज सैचुरेशन कम होता है। परसेंटेज सैचुरेशन म्हणजे देयर इज अ डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। कर राइट, शिफ्ट टू राइट मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। हे पटायले का, हे पटतंय का, डिक्रीज इन सैचुरेशन हो रहा है। अगर कर शिफ्ट टू राइट हो रहा है तो देयर विल बी डिक्रीज इन सैचुरेशन। फिर से एक बार, आता पहले कंपेयर करतो, पहले नॉर्मल कर्व, रेड वाला कर्व 60% सैचुरेशन है, तो 60% सैचुरेशन, सॉरी 60% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो 60% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के जब होगा तो कितना ज्यादा सैचुरेशन होगा, नियरली 90%। पढ़ते हैं नियरली 90%, 80 और 100 के बीच में 90 तो है यहाँ पे, देख लो देख लो, हे समजायला ना तुम्हाला, हे समजायला ना, बघा जरा, हे नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, 60% सैचुरेशन है, ओके, 60% पार्शियल प्रेशर, तो सैचुरेशन नियरली अबाउट 90%। ओके, पण आता जर तुम्ही बघितलं, हे झालं कोणाचं, हे नॉर्मलचं झालं, रेड मध्ये मी जे घातलंय ते झालं नॉर्मलचं। ओके, ते झालं नॉर्मलचं। अभी इसका देखते हैं, अगर 60% PO2 है, सॉरी जरा लक्ष द्या, 60% PO2 जर असेल, 60 PO2 आहे, तर किती झालं सॅच्युरेशन, हे एवढं, म्हणजे किती, जवळपास त्याला 75 म्हणा तुम्ही, 75 किंवा 78 म्हणा, 78 कळतंय, म्हणजे सॅच्युरेशन डिक्रीज व्हायला लागले। सॅच्युरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन डिक्रीजेस ऍज द कर्व शिफ्ट टू राइट, सॅच्युरेशन डिक्रीज व्हायला म्हणजे ऑक्सिजन डिसोसिएट व्हायला लागलाय हिमोग्लोबिन पासून। म्हणजे काय व्हायला लागलंय, ऑक्सिजन डिसोसिएट व्हायलाय हिमोग्लोबिन पासून। द कर्व शिफ्ट टू राइट इंडिकेट दैट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हिमोग्लोबिन, yes or no, yes or no, yes or no। now दोस्तों प्लीज पे अटेंशन, it indicate that curve shift to right मतलब it indicate that दोस्तों there is a dissociation of, ये इंडिकेट करता है कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन
from dissociation of oxygen from hemoglobin. Dissociation of oxygen from hemoglobin. Dissociation of oxygen from hemoglobin. And it occur कब होगा दोस्तों? ये कब हो सकता है? When it occur, when the dissociation occur. Okay, और what are the factor दोस्तों? Shift to right. ये कब होता है? Right shift to right होता है at दोस्तों at right tissue, right tissue at tissue level, right at tissue level. और मान लो at tissue level हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है? There is high, क्या है? टिश्यू लेवल पे क्या है? which are the factor which are responsible for shift to right? तो दोस्तों which are factor? These are low partial pressure of oxygen, high partial pressure of CO2, high H plus ion concentration, and high temperature. These are the factors which are responsible for दोस्तों shifting the curve to the right. दिसत नसलं थांबा, थोडंसं वेट करा. These are the factors which are responsible for shifting the curve to the right. ठीक है. Now shift to the left का मतलब क्या होता है? Now what is the concept of shift to the left? जरा लक्ष द्या. Concept of shift to the left मतलब like this. Concept of shift to the left मतलब ऐसा है. हा जो कर्व आहे हा बघा लेफ्ट साइडला शिफ्ट झालाय. शिफ्ट टू द लेफ्ट साइडला शिफ्ट झालाय म्हणजेच पहिलं परत इथे एकदा बोलतो. लेफ्ट साइडला शिफ्ट झालाय म्हणजे याला म्हणायचं शिफ्ट टू द लेफ्ट. नॉर्मल बोलूया, नॉर्मल. पहले क्या था 20, अगर नॉर्मल कर्व है ये रेड वाला तो 20% अगर पार्शियल 20 पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, 20 पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो परसेंटेज सैचुरेशन था मान लो 30. यहाँ पे अगर 20 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो परसेंटेज सैचुरेशन कितना होगा? नियरली देखो, नियरली कितना होगा? 70. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 है तो परसेंटेज सॅच्युरेशन कितना होगा? 70. हे असं पार्शियल प्रेशर लक्षात ठेवा. नियरली आता हे खूपच पुढे गेलं ऍक्च्युअली, एवढं वर नाही आलंय. 100च्या पुढे कुठं असणार आहे? ते थोडंसं 100च्या पुढे खूपच झाला, पण एक सांगायला लागलोय. ये ऐसा बोल सकते हैं. पार्शियल प्रेशर 20 है, परसेंटेज सॅच्युरेशन जवळपास 70. पार्शियल प्रेशर 30 है, परसेंटेज सॅच्युरेशन नियरली 90. पार्शियल प्रेशर 40 लाच, परसेंटेज सॅच्युरेशन 95. सो परसेंटेज सॅच्युरेशन बढ़ रहा है. ह्याला म्हणायचं लक्षात ठेवा. ह्या कॉन्सेप्टला म्हणायचं असतं दॅट इज शिफ्ट टू लेफ्ट. ह्या कॉन्सेप्टला म्हणायचं असतं दॅट कर्व इज शिफ्ट टू लेफ्ट. मी काढणार आहे, जरा लक्ष द्या. शिफ्ट टू लेफ्ट. शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब क्या है? शिफ्ट टू लेफ्ट इंडिकेट कर रहा है दोस्तों दैट इज association of, it is indicating association of oxygen with hemoglobin. It indicating association of oxygen with hemoglobin. And what are the factors which are responsible for दोस्तों the shifting the curve to the right? तो ये कब होगा? जब there is a high partial pressure of oxygen, then there is a low partial pressure of CO2, then there is a low H plus ion concentration आणि लो टेम्परेचर आणि लो TEMP आणि लो TEMP टेम्परेचर, लो TEMP टेम्परेचर, लो TEM. आता दिसत नसेल तुम्हाला, लक्ष द्या. दिसत नसेल तर लक्ष द्या थोडस. ए हाय, नाउ प्लीज पे अटेंशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट. अरे दिसच न झालं.
ओके ओके ओके, हेच पाहिजे ऍक्च्युली. प्लेन करू पाहिजे, प्लेन नॉर्मल. थांबा 2 मिनिट. असो. दिसायला का तुम्हाला हे? दिसतंय का मुलांना? बघा. नाउ ये है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और यहां पे बात करें दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट टू लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट. नाउ ये है परसेंटेज सैचुरेशन, दिस इज एन परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन परसेंटेज. और नीचे क्या है दोस्तों? नीचे जो दिया गया है, नीचे जो है वो है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर. ओके, यहाँ पे दोस्तों पार्शियल प्रेशर, मान लो यहाँ पे है PO2, partial pressure of oxygen. Now please pay attention. So right shift occur at tissue level, or left shift occur at L for left, L for at lungs. याद रखोगे MCQ. L for left और L for lungs लेवल पे होता है. शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ही यही है, लेफ्ट शिफ्ट होना इसका मतलब ही यही है दोस्तों, इसका मतलब भी यही होता है कि दैट इज देयर इज इनक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ हिमोग्लोबिन फॉर ऑक्सिजन. और असं काय, कारण की तिथं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड कमी आहे, H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. आता हा काय कॉन्सेप्ट आहे, हा उद्या चला सांगतो. डिक्रीज 2,3 DPZ, ये बहुत इंपॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहे, एनसीईआरटी मध्ये. डिक्रीज टेम्परेचर आणि फिटल हिमोग्लोबिन बद्दल त्यांनी सांगितलेलं, ते आपण सोडून देऊया, ते नका पकडू इथं, याला कट करून टाकतो मी. नाउ राइट शिफ्ट का मतलब है डिक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, डिक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. आणि हे कशामुळे? दैट इज increase PCO2, increase H+ ion concentration, increase 2,3 PG, increase temperature. आणखी एक महत्वाचा कॉन्सेप्ट आहे इथं एक पाहिजे, दैट इज increased PO2, आणि इकडे एक पाहिजे, दैट इज decreased PO2. हे दोन कॉन्सेप्ट आहे, शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट. बेसिक कळायलंय. थांबतो मी इथं, वेळ झालाय भरपूर. शिफ्ट टू राइट अँड शिफ्ट टू लेफ्ट. थांबतो मी इथं. बेसिक कळालं तुम्हाला? हे 2,3 DPG काय आहे मी नंतर बोलेल. हा बेसिक कॉन्सेप्ट समजून घ्या तुम्ही. हा बेसिक, हा शिफ्ट टू राइट म्हणजे काय व्हायला, हा डिसोसिएशन वाढतं. इकडं काय वाढतं? डिसोसिएशन वाढायला, आणि तिकडे असोसिएशन. त्यांनी दुसऱ्या शब्दात सांगितलंय एफिनिटी मीन्स क्लोजनेस. शिफ्ट टू लेफ्ट म्हणजे इनक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इंक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. यहाँ पे डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कारण की टिश्यू लेवलला काय होतंय, ऑक्सिजन डिलिव्हर करायचा आहे म्हणून पार्शियल प्रेशर डिक्रीज झालेलं आहे, आणि लंग्स लेवलला ऑक्सीजन आ रहा है ऊपर से. ओके, हम इनहेल कर रहे हैं इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है. और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा पीएच डिक्रीज हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों. H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन
यहाँ पे लिखो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। जितना भी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतना pH कम, जितना H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम उतना pH ज्यादा। ये बेसिक है, ये बेसिक है। आगे बढ़ते हैं या रुकते हैं यहीं पे। चलो आपके क्वेश्चंस। ओके बीपीजी काय असतं ते पण सांगतो तुम्हाला, ठीक आहे। तुम्हीच मला सांगा बीपीजी काय आहे, तर सापडलं तुम्हाला बघा, ठीक आहे। एक्झामला विचारतात की आपण शिफ्ट नाही केला बेटा, हे शिफ्ट होतो। अपन शिफ्ट नहीं केला, दैट शिफ्ट ऑकर, हमने शिफ्ट नहीं किया है। ये नॉर्मल कर्व है एंड इट इज नॉर्मल कर्व ऐसा होगा, बट एट नॉर्मल कहीं पे भी मान लो हमने ये है लंग्स, ये है लंग्स और यहां पे है टिश्यू। क्या बात करें, हाँ यहां पे है टिश्यू, यहां पे है लंग्स। अरे कॉन्सेप्ट तो समझ लो दोस्तों, कॉन्सेप्ट तो समझ लो। आपको क्या लगता है, और ये बीच में कोई तो भी मिडल वाला पार्ट है। ओके एक साइड पे लंग है तो दूसरे साइड पे टिश्यू, और बीच में कोई तो भी एक ब्लड पार्ट है, कोई तो भी एक मिडल पार्ट है। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी मान लो। ओके टिश्यू या फिर ब्लड है, लंग से थोड़ा सा बाहर आ गए हैं। ओके मान लो कोई भी, मान लो ये हार्ट है, चलो ओके। आता काय हे कुठं भेटलं आपल्याला, हे कर्व कुठं मिळालाय? बेसिक गोष्टी समजून सांगतो, काय बोलू रे तुम्हाला, बेसिक गोष्टी। नाउ प्लीज पे अटेंशन। ये लंग्स जो है, ये जो लंग्स है बेटा, इस लंग्स में लंग्स के लेवल पे जो कैपिलरी है वहां से ये ब्लड लिया है। लंग्स के लेवल पे जो कैपिलरी है वहां से ब्लड लिया है। टिश्यू लेवल पे जो कैपिलरी है सपोज वहां से भी ब्लड लिया है। ओके और ये हार्ट है तो यहां से भी ब्लड लिया है। मान लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। ये क्या है इसमें, ये इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है ब्लड, इसमें है रक्त, ब्लड लिया है हमने। ये है ब्लड, ये है ब्लड, ये है ब्लड, ये है ब्लड, ये है ब्लड। ओके ये है ब्लड दोस्तों, ये 3 लेवल के ब्लड हमने लिए हैं, हार्ट टिश्यू या फिर लंग्स हार्ट और टिश्यू। ये हार्ट की जगह कोई पकड़ लो, ये है ब्लड। नाउ इस ब्लड को जब हमने देखा तो हमें पता चला इस ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा सैचुरेटेड है। इस ब्लड का हीमोग्लोबिन ज्यादा सैचुरेटेड है, मींस इस ब्लड में जो लंग्स के लेवल पे ब्लड है, खास करके अल्वेओलार कैपिलरी में, जो कि मान लो पल्मोनरी वेन के जो कैपिलरी, पल्मोनरी वेन खास करके आप बोलोगे तो सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है ना, यहाँ पे दोस्तों दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड ब्लड नियर नियर लंग्स, ये ब्लड लिया है। तो इथं काय होईल, परसेंटेज ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ज्यादा हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मिलेंगे। यस और नो, यस और नो, ठीक आहे भेटतील का नाही, यस। आणि इकडे जर बघितलं तर तुम्हाला म्हणजे कमी मॉलिक्यूल मिळतील ऑक्सी हिमोग्लोबिन वाले, कारण की ऑक्सिजन पूर्ण टिश्यूला गेलेला असणार आहे। तर म्हणून हे असा कॉन्सेप्ट आहे। हार्ट लेवल समजा नॉर्मल आहे, तर मग हा जो ग्राफ आहे असं जर समजून सांगायचं झालं, एक थोडस बेसिक, हा इथं नॉर्मल लेवल आहे, तर लंग्स लेवलला तो थोडासा लेफ्टला शिफ्ट होतो, टिश्यू लेवलला तो राईटला शिफ्ट होतो, असा ते कॉन्सेप्ट आहे। उद्याच्याला हळूहळू बोलल, म्हणजेच देयर इज अ हाई एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन एट लंग्स लेवल, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे, एंड देयर इज अ लो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ओके फॉर ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम है, वो यूटिलाइज हो रहा है। हा बेसिक कॉन्सेप्ट आहे, म्हणून ते लवकर ऑक्सीजन त्याला अटॅच होत नाही, त्याच्या जाग्यावर दूसरा एक डोमिनेंट मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है CO2, तो CO2 अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन के साथ, कहां पे, टिश्यू लेवल पे। कल मैं ज्यादा और भी एक्सप्लोर करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। रुकते हैं, आपके डाउट्स, आपके जो भी डाउट्स है बोल दो। ओके सर
is the right shift? Sir, the graph of percentage of saturation of hemoglobin change in case of anemia or breathlessness. Yes, change हो जाएगा. एनीमिया में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बेटा. ओके, देयर इज अ डिक्रीज ऑक्सीजन. अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे, शिफ्ट टू राइट हो जाएगा. ठीक आहे सर, माझी बीज आणि प्लांट किंगडमच्या 2 डीपीपी द्यायच्या राहिल्या होत्या. वैभव सरला पीडीएफ पाठवू शकाल का? पीडीएफ नाही भेटू सर, रिसाइन करू शकता. का बरं नाही दिल्या हे सर्वात महत्वाचं आहे. वैभव सरांशी बोला, करतील रे असाइन. या कन्सेप्ट वैभव सरांशी बोलून घ्या बेटा उन्मेष. या कन्सेप्टवर क्वेश्चन कसे येतील सांगतो ना. ओके, सगळं डिटेल सांगतो.